سب کہاں کچھ لالہ و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ السلام علیکم ناظرین، حسب وعدہ اس غزل کا بقیہ حصہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر۔ چنانچہ بلا تاخیر شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرف سے یہ التماس، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں اور ساتھ میں ویڈیوز کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ چنانچہ بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں یعنی پارٹ 1 میں جو خوں آنکھوں سے بہنے دو کہ ہے شام فراق، میں سمجھو گا کہ شمع دو فروزہ ہو گئی، یہ شعر کر لیا تھا۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، ان پریزادوں سے لے گئیں خلد میں ہم انتقام، قدرت حق سے یہی حوریں اگر وہاں ہو گئی۔ تو اس شعر میں غالب نے ایک بہت لطیف نقطہ جو ہے وہ نکالا ہے کہ چونکہ عورتیں، دنیاوی عورتیں جو ہیں، یہ قیامت کے دن اللہ جل شانہ جو ہے انہی عورتوں کو ان کے جو دنیا میں شوہر رہے ہوں گے ان کو وہ عطا کر دے گا۔ تو غالب کہتا ہے کہ ان پریزادوں سے لیں گے خلد میں ہم انتقام، قدرت حق سے یہی حوریں اگر وہاں ہو گئیں۔ تو اگرچہ حوریں ظاہر ہے وہ تو حوریں ہیں، دنیاوی جو عورتیں ہوں گی ان کو وہ سٹیٹس تو نہیں ہوگا ان کا وہاں، بلکہ ان کا سٹیٹس حوروں سے کہیں زیادہ ہوگا۔ لیکن غالب نے یہ لطیف نقطہ نکالا ہے کہ چونکہ جنت کے اندر ہر چیز جو ہے جنتی کے مطیع ہوگی، تو اسی قاعدے کے تحت جو حوریں ہیں وہ بھی جنتیوں کی مطیع ہوں گی اور جنتیوں کا حکم ماننے کا پابند ہوں گی۔ تو غالب کہتا ہے کہ پھر وہاں جو ہے ہم ان پریزادوں سے خوب جو ہے وہ انتقام لیں گے۔ دنیا میں انہوں نے جو ہمارے ساتھ جفائیں کی، ہماری حکم عدولیاں کی اور ہم پر ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے، تو جنت میں تو چونکہ یہ ہوں گی ہی ہمارے لیے، تو وہاں تو ایسا ماحول نہیں ہوگا، لہذا پھر ہم وہاں خوب ان سے انتقام لیں گے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، نیند اس کی ہے دماغ اس کا ہے راتیں اس کی ہیں، تیری زلفیں جس کے بازو پر پریشاں ہو گئیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس غزل کا سب سے بہترین شعر ہے اور اس کے اندر کوئی ایسی پیچیدگی نہیں ہے، بڑی سیدھی سی بات ہے کہ وہ شخص، وہ خوش نصیب کہ جس کو اس کا محبوب جو ہے مل جائے، اور پھر ملے بھی کس حال میں کہ اس کے ساتھ اس کی جو ہے شب جو ہے وہ وصل کی حالت میں گزر رہی ہو، تو غالب کہتا ہے کہ پھر نیند بھی اس کی ہے، دماغ بھی اس کا ہے، راتیں بھی اس کی ہیں، یعنی زندگی گزارنے کا لطف جو ہے اسے حاصل ہے جس کا محبوب جو ہے اس کی بر میں ہو، اس کی بغل میں ہو۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، میں چمن میں کیا گیا گویا دبستان کھل گیا، بلبلیں سن کر میرے نالے غزل خواں ہو گئیں۔ تو اس میں دبستان کے بارے میں سمجھ لیں کہ دبستان اسکول آف تھاٹ کو کہتے ہیں۔ تو آج کل کی زبان میں کالج، سکول کوئی بھی ہو اس کو دبستان کہا جا سکتا ہے۔ تو اس شعر میں کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے۔ غالب کہتا ہے کہ میں ایسا اچھا شاعر ہوں، یا میرا جو کلام ہے وہ اتنا دردناک اور اتنا درد آمیز ہوتا ہے کہ میں نے جب چمن میں جا کر غزل گوئی شروع کی، وہاں اپنے شعر جو ہیں سنانے شروع کیے، تو گویا کہ سارے پرندے جو تھے وہ میرے شاگرد بن گئے، وہ مجھے فالو کرنے لگے اور مجھ سے اتنا متاثر ہوئے کہ جیسے جیسے میں پڑھ رہا تھا، جیسے جیسے میں اشعار سنا رہا تھا، بلبلیں بھی جو ہیں وہ بھی میرے پیچھے اسی طرح سے چہچہانے لگیں، گویا کہ سارا گلشن جو تھا وہ غزل خواں ہو گیا۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، وہ نگاہیں کیوں ہوئی جاتی ہیں یارب دل کے پار، جو میری کوتاہی قسمت سے میگاں ہو گئیں۔ اس شعر کی ساری عمارت جو ہے وہ ایک محاورے پر ہے کہ نگاہوں کا میگاں ہونا۔ تو مولانا طاہر حسین علی رحمہ اللہ انہوں نے بھی اس شعر کی تشریح کی ہے کہ نگاہوں کا میگاں ہونا جو ہے دراصل ایک طرح سے استعارہ ہے کہ نگاہوں کا نیچے رہنا، کیونکہ جو میگاں یعنی پلکیں جو ہوتی ہیں وہ عام طور پر جو ہے وہ جھکی سی ہوتی ہیں، تو جب نگاہیں بھی میگاں ہو جائیں گی تو اس کا مطلب یہ ہے وہ بھی جھکی سی ہوں گی، اور جھکی نگاہیں جو ہوتی ہیں ان کے اندر جو ہے وہ شرم کا مادہ ہوتا ہے، اور یعنی وہ بڑی شرمندگی محسوس ہوتی ہیں، اور وہ عاشق کو جو ہے بہت اچھی لگتی ہیں، بڑی بھلی لگتی ہیں۔ یعنی محبوب جب تھوڑا شرما رہا ہو اور اس کی آنکھوں سے وہ شرم جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہو تو وہ بہت بھلا لگتا ہے عاشق کو۔ تو غالب کہتا ہے کہ وہ نگاہیں کیوں ہوئی جاتی ہیں یارب دل کے پار، جو میری کوتاہی قسمت سے میگاں ہو گئیں، یعنی میری بدبختی تھی، مجھ کو تکلیف دینی تھی میرے معشوق نے، تو اس بدبختی کی وجہ سے اس کی نگاہیں جو ہیں وہ میگاں ہو گئی ہیں، یعنی وہ بڑا شرما رہا ہے، اس کی نگاہوں کے اندر جو ہے وہ شرم در آئی ہے، اور اس
शर्मदार आने की वजह से और उसके शर्माने की वजह से वो पहले से कई गुना जो है वो प्यारा लगने लगा है। और जब वो पहले से कई गुना प्यारा लगने लगा है तो मेरी कोताही किस्मत है कि मुझ पर उसका हिजर जो है और भी भारी होने लगा है, मेरे अंदर उसके विसाल की ख्वाहिश जो है वो और भी दो चंद हो गई। इस तरह गालिब ने बड़ी खूबसूरती के साथ ये मज़मून जो है वो बांधा है। अगला शेर, बस के रोका मैंने और सीने में उभरे पै बपै, मेरी आहें बखियाए चाके गरीबां हो गई। तो इस शेर का कोई इस तरह से ख़ास मफ़हूम नहीं है कि जिसमें कुछ शेरियत हो। ये दरअसल गालिब ने जो है एक मंजरनामा है उससे जो है वो फ़ायदा उठाया है और इससे जो है शेर का एक जो है वो मजमून निकाल लिया है। वो मंजरनामा ये है कि जब भी बखिया काली की जाती है, टांके लगाए जाते हैं, तो हमेशा एक टांका जो है, टांका एक मरतबा ऊपर की तरफ जाता है, दूसरी मरतबा जो है वो नीचे की तरफ जाता है। तो ये जो उतार चढ़ाव है टांकों का, गालिब ने जो है इसको अपनी आँख के साथ जो है वो तशबीह दी है, जो कि आँख के अंदर भी उसी तरह से उतार चढ़ाव होता है। तो गालिब कहता है कि बस के उभरे पै बपै, बस के रोका मैंने और सीने में उभरे पै बपै, यानी मैं अपनी आँखों को रोक रहा हूँ लेकिन वो उतार चढ़ाव के साथ मुसलसल जो है एक ख़ास उतार चढ़ाव के साथ वो सीने के अंदर जो है वो आहें जो हैं वो ज़ीरो बम जो है वो दिखा रही हैं। उतार चढ़ाव के ज़रिए या उतार चढ़ाव जो है वो उन आहों का जो है मुझे नज़र आ रहा है। तो उसके बाद फिर गालिब ने उसी उतार चढ़ाव को जो है फिर दूसरे मिसरे में इस तरह से बयान किया कि मेरी आहें बखियाए चाके गरीबा हो गई। तो इसमें जो लतीफ़ नुक्ता मैं समझता हूँ वो ये है कि चूँकि जो गरीबा का चाक जो होता है वो सीने के ऊपर होता है। नज़म सवा सबाई एक बहुत बड़े शायर गुजरे हैं, तो उन्होंने अगरचे इसमें कहा है कि इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन मैं इसमें थोड़ी सी ये ख़ास बात देखता हूँ कि ये जो कुर्बत है कि ये जो चाके गरीबान यानी गरीबान जो होता है वो सीने के ऊपर होता है। अब सीने के अंदर ये जो है आह के उतार चढ़ाव का अमल जारी है, जो कि बखिया की तरह है, यानी उतार चढ़ाव जिस तरह बखिया का होता है इसी तरह से आह का जो है उतार चढ़ाव है, और वो सीने के अंदर है और सीने के ऊपर जो है वो गरीबा है। तो गोया कि इस तरह से एक सिलाई हो रही है उस आह के उतार चढ़ाव से उस गरीबा की, जो कि वो सीने के साथ चिमटा हुआ है। तो इस तरह से गालिब ने इस मंजर से एक लतीफ़ जो है वो नुक्ता निकाला और यूं जो है अपना एक शेर जो है वो बना दिया। अगला शेर है, वहाँ गया भी मैं तो उनकी गालियों का क्या जवाब, याद थी जितनी दुआएं सरफे दरपा हो गई। तो ये शेर जो है बहुत खूबसूरत शेर है। इसमें गालिब ने यूँ समझे कि एक पूरा वाक़या जो है वो मरज़ूम किया है। तो बस आप वो वाक़या सुन लें तो आपको जो है ये शेर समझ में आ जाएगा। वाक़या ये है कि गालिब जो है अपने महबूब को मिलने जाने लगा है। गालिब को यकीन है कि मेरा महबूब जो है वो मुझे जो है वो गालियाँ निकालेगा, और गालिब जो है इतना फ़िदा है कि उसने दुआएं याद की हैं, और इसलिए कि जो ही मेरा महबूब मुझे कोई गाली देगा वो मैं जवाब में जो है उसको एक दुआ दूँगा। तो अंदाज़ा लगाएं क्या इरादा लेकर निकले हैं आशिक साहब कि मेरा महबूब जो ही मुझे कोई गाली निकालेगा मैं आगे से क्या करूँगा, दुआ दूंगा। लेकिन हुआ यूं कि जब गालिब पहुंचा इस इरादे के साथ तो दरबान जो था उसने अंदर जाने की इजाज़त ही नहीं दी और उसने जो है वो गालियाँ निकालना शुरू कर दी। तो जब दरबान ने गालियाँ निकालना शुरू की तो गालिब को वो जो दुआएं थी याद जो उसने अपने महबूब की गालियों के जवाब में जो है वो देनी थी उसने वो दरबान को देना शुरू कर दी, हत्ता कि वो एक एक करके सारी दुआएं जो हैं वो ख़त्म हो गई और अब गालिब को कोई और मज़ीद दुआ जो है वो याद न रही। तो अब गालिब जो है वो तअस्सुफ़ के तौर पर, अफसोस के तौर पर ये कह रहा है कि अब मैं जब अंदर जाऊंगा और मेरा महबूब जो है मुझे गालियां निकालेगा तो उनकी यानी उसकी गालियों का जवाब देने के लिए मैं जितनी दुआएं याद करके आया था वो तो सारी की सारी जो है वो दरबान की गालियों के जवाब में जो है वो सर्फ हो गई हैं। मैं आगे से जो है अपने महबूब की गालियों का क्या जवाब दूंगा। उसके बाद अगला शेर है, जां फिजा है बादा जिसके हाथ में जाम आ गया, सब लकीरें हाथ की गोया रके जां हो गई। इसमें गालिब ने जो है वो शराब नोशी की जो है वो तारीफ़ की है, क्योंकि जो आदमी भी इस यूँ समझ लें कि इस नहज के होते हैं, जो आदमी भी शराब और कबाब से और इससे इन चीज़ों से मोहब्बत करते हैं उनके नज़दीक शराब की जो बड़ी अहमियत होती है। तो गालिब कहता है कि जां फिजा है बादा, जां फिजा का मतलब है जान को बढ़ावा देने वाला, यानी बड़ा जान बख्श, बादा शराब जिसके हाथ में जाम आ गया, जिसके हाथ में भी शराब से भरपूर प्याला हाथ आ गया,
सब लकीरें हाथ की गोया रगे जां हो गई। अब इसमें गालिब ने, मैं समझता हूँ कि ये शेर जो है दरअसल लकीर और रगे जां, इनमें जो गालिब को एक लफ्जी मुशाबहत नजर आई, यहाँ से गालिब ने ये शेर जो है निकाला है, या यूँ समझें कि ये मजमून निकाला है कि सब लकीरें हाथ की गोया रगे जां हो गई। यानी वो जो हाथ पर जो लकीरें थीं, जब उस हाथ के अंदर शराब भरा प्याला आया तो वो लकीरें जो है गोया कि वो रगे जां बन गई। तो ये जो एक लकीर और रग के अंदर जो एक मुशाबहत है, यहाँ से जो है गालिब ने ये मजमून निकाला है, यानी उसको ज़िंदगी मिल गई, वो मस्त हो गया। उसके बाद अगला शेर है, हम मुवाहिद हैं हमारा कैश है तरके रसूम, मिल्लतें जब मिट गईं अज्जाए ईमा हो गईं। तो मैं समझता हूँ कि ये शेर जो है गालिब के बहुत ज़्यादा अमीक जो है मुशाहदे पर मुश्तमिल है, क्योंकि आम तौर पर यह हुआ है, आम तौर पर कि मज़ाहब जो होते हैं उनमें मुख्तलिफ़ किस्म की रसूम और रवाज जो होते हैं वो शामिल हो जाते हैं, चाहे वो आसमानी हो चाहे वो दुनियावी हो। तो गालिब जो है वो कहता है कि मैं तो खालिस जो है चीज़ को लेने का आदी हूँ, मैं तौहीद परस्त हूँ। हम मुवाहिद हैं हमारा कैश है तरके रसूम, कि हम तो मुवाहिद हैं और हम इसलिए ये जो रसूम, ये जो अकायदे बातला जो कि आहिस्ता आहिस्ता मज़ाहिब हक़ के अंदर शामिल हो जाते हैं, हम इनको कबूल करने वाले नहीं हैं। हम जो मुवाहिद हैं हम इस किस्म की रसूम को छोड़ने वाले हैं, इनको तर्क करने वाले हैं। और आगे फिर अपने मुशाहिदे के तौर पर गालिब कहता है कि मिल्लतें जब मिट गई अज्जाए ईमा हो गई। तो दस्तूर ये है ज़माने का कि जब कोई सोच, कोई नया अकीदा जब मौजूद होता है तो लोग उसके ख़िलाफ़ जो है उठ खड़े होते हैं, उस पर तनकीद करते हैं। लेकिन जब वही अकीदा और वही मिल्लत जब गुजर जाती है, जब वो किस्सा पारीना हो जाती है, तो फिर लोग ढूंढ कर जो है उसकी पैरवी करते हैं। फिर हत्ता कि उन अपने दौर के अंदर कंट्रोवर्शियल चीज़ों को अपने ईमान का वो हिस्सा बना लेते हैं। उसके बाद अगला शेर है, रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। जहाँ इस गज़ल में कई एक और अशार को जो है बैतुल गज़ल करार दिया गया है, मैं समझता हूँ कि ये शेर भी उन्हीं बैतुल गज़ल अशार में से एक है, क्योंकि ये एक ऐसी गज़ल है कि इसमें हम किसी एक शेर को बैतुल गज़ल करार नहीं दे सकते, बल्कि इसमें बहुत से ऐसे अशार हैं कि जिनको हम बैतुल गज़ल करार दे सकते हैं। तो रंज से खूगर, खूगर कहते हैं आदी होना। गालिब कहता है कि रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है, कि अगर इंसान पर हर वक्त मुसीबत ही पड़ी रहे तो फिर उसका एहसास जो है वो ख़त्म हो जाता है। मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। तो जब मुझ पर वो तहाशा मुश्किलें पड़ी तो मेरे लिए वो आसान हो गई। तो इस शेर में बहुत खूबसूरती है। देखिए, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई, यानी मुश्किल और आसान के अंदर जो एक तज़ाद पाया जाता है, गालिब ने बहुत खूबसूरती के साथ उस तज़ाद को जो है यहाँ इस्तेमाल किया है। उसके बाद आखिरी शेर और इस गज़ल का मक़ता, यूं ही कर रोता रहा गालिब तो अहले जहाँ, देखना इन बस्तियों को तुम के वीरां हो गई। तो इसमें का तस्करा किया है कि अगर इसी रफ्तार से गालिब रोता रहा तो अहले जहां तुम देखना कि ये बस्तियां जो हैं वो वीरान हो जाएंगी। अब ये बस्तियां वीरान क्यों कर होंगी, इसकी कई तौजीहात हो सकती हैं। एक ये है कि लोग जो है वो गालिब को इस तरह से रोता देखकर देख ना पाएंगे मज़ीद, और वहाँ से उठकर जो है वो चले जाएंगे। दूसरा ये है कि उसके गम के अंदर बाकी सब लोग भी जो हैं वो भी गमज़दा हो जाएंगे और वो भी इसी तरह से निढाल और गमज़दा नज़र आने लगेंगे। इस तरह से गालिब जहाँ रहता है उसके साथ साथ दीगर लोग जो हैं वो भी जब इतने परेशान हो जाएंगे तो सारा माहौल ही जो है वो सोगवार नज़र आएगा, वीरान नज़र आएगा, गोया कि बस्ती जो है पूरी की पूरी वीरान नज़र आएगी। तो उम्मीद है कि ये जो मैंने तौज़ीह तशरीह की है इससे आपका कुछ ना कुछ जो है किसी न किसी दर्जे में फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। मैं ये नहीं कहता कि मेरी तशरीह या मेरी तौज़ीह जो है वो हरफ़ आखिर है, या मैंने बहुत अच्छी तौज़ीह तशरीह की है। मुझसे कई गुना जी हाँ ऐसे लोग होंगे कि जो इन अशार की बेहतर तौज़ीह कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैंने भी किसी न किसी हद तक आपको तौज़ीह या तशरीह जो है करके देने की कोशिश की है, और अब मैं किस हद तक कामयाब हुआ हूँ मैं इसका जो है कमेंट्स में इंतज़ार करूँगा। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।